Welcome all members. Myself Anushkar Mandal from Management System Consultancy. Today we will discuss on particular subject on environmental management system. This environmental management system is a purely international concept. इसका जो ISO 14001 2015 का हिसाब से जाना आता है. तो उसका रिक्वायरमेंट कि क्या है स्टैंडर्ड का अंदर कौन सा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है that we will discuss today's session. Let me move forward. Yes. So as we have informed you कि your advantages of ISO 14001 certification इसमें क्या है? Increase resource efficiency, lower consumption and environmental cost, reduction of environmental risks in your company, continuous implementation of the necessary environmental protection measures, integration of environmental measurement into business process, international recognition as ISO 14001. Now moving forward. So this is the ISO 14001 2015 last version. हम लोग पहले भी इसका लेकिन चर्चा किया है काफी बार कि पीडीसीए साइकिल और डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग का इन्वेंशन है, तो ये डेमिंग साइकिल भी कहा जाता है. That will be applicable for all sorts of management system standards implementation. This is the base of any management system standards. Plan, you have to plan that हम लोग आ रहे हैं कहाँ तक, हम लोग किस हिसाब से प्लान करना है, कहाँ तक प्लान करना है, किस हिसाब से कॉम्प्लाई करना है, what will be the checking parameters and how to act on that. जहाँ पे कुछ लैग होना है. Process approach, that is very much important, जो basically scope से का बाद जहाँ पे क्लॉज नंबर 4 में देखा जाता है. बेसिक ट्रेनिंग के लिए मेरा और भी वीडियोस है, आप लोग बेसिक ट्रेनिंग इसे बिट ऑफ एडवांस वन, दैट्स व्हाई हम लोग ओनली पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट में ही देख रहे हैं. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या है. ओके, हम लोग और भी स्लाइड है, वो आप वीडियोस को आप देख सकते हो मेरा चैनल के थ्रू, जहाँ बेसिक भी बताया गया है. ओके, सो प्रोसेस अप्रोच बेसिकली identification of or defined your processes through several formatting. Several types of methodology are there. Turtle diagram है, root thought tree diagram है, CPOC diagram है, supplier input, process, output, customer, CPOC diagram. So there are several types of processes are there to define your own processes in that way. What will be the input, then the process, the output. Now the types of processes. There are basically three types of processes: management process, operational process, support process. Planning, organizing, staffing, leading, controlling the management system process, management process. Operational process or core processes are the new product development, manufacturing, logistics, distributions. Those are directly involved with the customer or customer oriented process बोल सकते हैं. Support process means core function को जो support करने के लिए provision of information technology, IT, finance, human resource, all are the support processes. Yeah. What are the main key elements of EMS, Environmental Management System? Environmental policy, identification of significant environmental aspects, development of objectives, targets, implementation plan to meet objective and targets, MAP, management action plan, training and competence, management review, and improvement. So the key elements of EMS implementation. Yes, environmental policy, टॉप मैनेजमेंट जो है वो एनवायरमेंट पॉलिसी सेटअप करेगा, जहाँ पे पॉल्यूशन प्रिवेंशन लेके, वेस्ट रिडक्शन लेके, एनर्जी कंजर्वेशन लेके, कंप्लायंस लेके, रिसोर्स रिसाइकलिंग लेके, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके कमिटमेंट रहेगा पॉलिसी के अंदर. ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हम लोग किए हैं, ऑलरेडी काफी बार हम लोग दूसरा वीडियो में किए हैं. current flow of standard, clause number 4 to 10. And your information, scope, normative definition, terms and definition is the
supporting standard, auditable and implemented clause starts from clause number 4 to 10. Context of the organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement. जब हम लोग दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मींस ISO 14000 2015, तो इस टाइप का वर्बल फॉर्म्स जो यूज्ड है उसको ध्यान में रखना होगा हम लोग को। मेनली दिस व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, शैल इंडिकेट्स ए रिक्वायरमेंट। जहां पे शैल उसका बाद से जो चीज लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, दैट इज द मेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही होगा और ऑडिटर को उसका ऊपर इसमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा। दैट इज द मेन मोटिव। Others are there, should indicates a recommendation, may indicates a permission, can indicates a possibility or capability. So now हम लोग को जो स्टैंडर्ड फ्लो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि mainly implemented and auditable clause starts from clause number 4, planning. So पहले भी हम लोग चर्चा किया है, प्लानिंग कहाँ तक है, 4 to 7 is under planning phase. तो वन बाय इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्लास नंबर 4 to 10 के अंदर में प्लानिंग डू जे कनेक्शन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कॉन्टेक्स्ट, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 4 का अंदर में दिस सब क्लास का अंदर में हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ सैंपल इंक्लूड किया गया, देखिए, एनवायरमेंट कंडीशन, क्लाइमेट, एयर, वाटर क्वालिटी, लैंड यूज, एग्जिस्टिंग कंटामिनेशन, नेचुरल रिसोर्स क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा। एक्सटर्नल कल्चर क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एटसेट्रा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, are conditions that organizations such as activities, products and services, strategic condition, culture and capabilities, etc. knowledge, process and system management system under this clause. Now second one is very much important, need to know or determine the interested parties needs and expectation with respect to environment management system is concerned. Organization need to determine needs and expectation of interested parties, both internal and external or parties, internal and external. Determine the scope of the environment management system, कौन सा एरिया, कौन सा स्कोप, कौन सा बाउंड्री के अंदर में मेरा बाउंड्री एंड एप्लीकेबिलिटी, कहां तक मेरा सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड का इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, दैट टू बी डिक्लेयर्ड, दैट इज द बेसिकली स्कोप, योर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, योर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज बेसिकली द स्कोप ऑफ द सर्टिफिकेशन, स्कोप ऑफ द implemented, scope of the standard implementation. एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए कि प्रोसेस अप्रोच, अंडर दिस क्लॉज वी विल डिफाइन आवर प्रोसेस को डिफाइन करना होगा। ओके, 5 इज द लीडरशिप। तो लीडरशिप में पहले हम लोग आप चर्चा किए हैं, लीडर्स नीड टू एस्टेब्लिश द EMS, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरमेंट पॉलिसी, जो हम लोग पहले भी दिखाए हैं, पॉलिसी डिफाइन करना होगा एंड कम्युनिकेट करना होगा पॉलिसी को। दैट इज द मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लीडर्स और टॉप मैनेजमेंट। Another thing is that ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी सेट करके देना होगा कि जो ऑर्गेनोग्राम एंड उसका हिसाब से किसका क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसर्न, वो असाइन करना होगा। टॉप मैनेजमेंट असाइन द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ द EMS, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 6 is very much important। 6 में क्या मेन हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड माना जाता है 6 को। 6 itself called a planning action to address risks and opportunities। यहाँ पे QMS quality management system और environment management system में थोड़ा डिफरेंस है, other than that both are flow are same। यहाँ पे क्या है कि 4.1 4.2 में जहाँ पे हम लोग इशू, इंटेलेक्चुअल इशू एंड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी को हम लोग जहाँ पे डिटरमाइन किया थे, those are the basically input to determine the risks and opportunities. So the organization shall consider the issues referred in 4.1 requirements, referred in 4.2 needs and expectation. That is the main input for the risk assessment. यहाँ पे और एक चीज है, environmental aspect impact analysis, 6.1.2 environmental aspect. Now what is the
aspect, what would the impact? Aspect is basically the activities aspect. अभी वो एक्टिविटी का चलते कहां पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज बेसिकली इम्पैक्ट से जनरेशन ऑफ फ्यूम, दैट इज द एस्पेक्ट. अभी उस फ्यूम जनरेट होने का चलते कहां पे इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट, और एयर पॉल्यूशन इज द इम्पैक्ट. कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन में एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लायंस laws statutes are applicable, that is under the compliance obligation. So organization need to maintain a register type of thing जहाँ पे पूरा environment legalizing जो है वो हम लोग को jot down करना होगा. compliance obligation. planning action, now जहाँ पे हम लोग risk assessment के aspect impact analysis किए उसका against में हम लोग जहाँ जहाँ लगना है high risk से उसका against में हम लोग action लेना हो, that is comes under planning of action. Organization take action, address its significant environment aspect, compliance obligation कुछ है, identification of opportunities and opportunities उसका against. Environmental objective में planning पे achieve थे, same here जहाँ पे हम लोग risk assessment है एस्पेक्टिव एनालिसिस किए, जहां पे कुछ सिग्निफिकेंट है, जहां पे ज्यादा इंप्लीकेशन है, वहां पे रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू सेट आवर टारगेट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड वी हैव टू टेक अप आवर मैनेजमेंट एक्शन प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. नाउ कॉम्पिटेंसी एंड अवेयरनेस, हर पर्सन का एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स क्या है, उसका experience education of skill wise that to be established and accordingly training to be given. जहाँ पे लगना है उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्लान करना होगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग देना होगा एंड इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन करना होगा. हाउ इफेक्टिव इज द ट्रेनिंग. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अंडर 7.5, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अपडेटिंग, जैसे वर्जन कंट्रोल बोल सकते हो आप, टेम्पलेट बोल सकते हो, ओके कहाँ पे रिवीजन नंबर, issuing number, ये सब that all comes under the documented information, document control. Now this is the finish of the planning phase. Operation means do, plan का P खत्म हुआ 4 to 7 तक. Now this is the operation planning and control mean doing part. Establish processes जहाँ पे हम लोग रिस्क असेसमेंट और एस्पेक्ट इम्पैक्ट में जहाँ पे हम लोग को एसओपी सेट करना था, कुछ मैनेज करना था प्रोसेस को, that is the portion of the operation planning and control. Establishment of your SOPs, OCPs, जहाँ पे आपको जिस हिसाब से काम को कंप्लाई करना होगा. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अगर एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी आपका इशू है जहाँ पे पोटेंशियल इमरजेंसी आइडेंटिफाई जहाँ पर हम लोग किए हैं, डेवलप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान, इंडिकेट इंक्लूड प्लान्स फॉर मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. अब उसका हिसाब से फिर हम लोग को टेस्ट भी करना होगा थ्रू मॉक टेस्ट इमरजेंसी. नाउ दिस इज द अंडर 8 में दो था, implementation of your SOP, OCP and emergency preparedness response plan. Now 9 में है आपका internal audit and management review. internal audit का हिसाब से ISO 14001 का हिसाब से 2015 का हिसाब से आपको internal audit करना है. यहाँ पे प्लान होगा, हम लोग को इंटरनल ऑडिट टीम का हिसाब से, फ्रीक्वेंसी का हिसाब से शेड्यूल मारना होगा, रिकॉर्ड एंड नॉन कन्फर्मिंग है उसका अगेंस्ट में हम लोग को रिजर्वेशन करना होगा. इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट रिव्यू, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट हम लोग इंटरनल ऑडिट में जो लगना है हम लोग पेश किए, टॉप मैनेजमेंट वी डिसाइडेड अपॉन द थ्रू मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, डिटरमाइन EMS contingencies suitable, adequate, effective. लास्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट, जो जहां पे हम लोग डिसाइडेड किए थ्रू करेक्टिव. नॉन कन्फर्मिटी अगर कुछ है तो उस हिसाब से हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे. और करेक्टिव एक्शन किस हिसाब से लेना होगा, पहले करेक्शन, उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन. If any further prevention or preventive action is required, this is the trick है that we have to updated in the risk register, जहाँ पे 6 criteria में बात किया गया है. तो this is the cyclic way of the environmental management system standard. So in brief, that's all from my side.
और वेबसाइट आप लोग जाइए managementsystemconsultancy.com। हम लोग का जीमेल आईडी या फोन नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। एंड वीडियोस को अगर सही लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स इन फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू ऑल।